You have to predict that. Voltage is known, resistance is known. That's called analysis. Right? Now you can have more. This is the simplest circuit which you can have. You can have complicated circuit. For example, now I have a battery. I connect one resistor. I connect second resistor here. I connect third resistor here. This is the circuit. It is a bit complicated than that. Now I tell you, now I am connecting some battery. Now current will split because there is now, it was a single loop circuit. It's a multi-loop circuit. In a multi-loop circuit, every branch has its own current. So one current will be through this R1, another current will be through R2, another current will be through R3. For example, let this current I name I1, this current I2, this current I3. Now, analysis of this circuit means knowing the values of resistors and the EMF, whatever the values of the currents through different branches. Not only currents, what about the voltages across different elements. तो जब हम ये क्वेश्चन रेज करें कि we have an electrical circuit, some parameters are known, other parameters are to be predicted, they are to be solved. We say we are doing analysis of this electrical circuit. ठीक है? Now this analysis becomes complicated as circuit becomes complex. Now if I, for example, connect circuit this way, I have one resistor, another resistor, another resistor. Then what I do, I connect one more battery on this side. There are two energy sources now. Resistor 1, resistor 2, resistor 3. Then I have one source of EMF E1, another source of EMF E2. That was a different circuit. तो जैसे जैसे आप सर्किट करेंगे कॉम्प्लिकेट, analysis will become complicated. So to simplify the analysis of the circuits, different people have analyzed it, seen the patterns in these circuits and developed some theorems. They say one theorem is Norton's theorem, second is Thevenin's theorem, then is Millman's theorem, maximum power transfer theorem. This theorem is another theorem, superposition theorem. तो सुपरपोजिशन थ्योरम एक थ्योरम है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम यूज करते हैं एनालिसिस के लिए. एनालिसिस से मतलब है देयर आर सम पैरामीटर्स इन द सर्किट व्हिच आर नोन टू अस एंड सम पैरामीटर्स आर टू बी प्रेडिक्टेड. राइट? नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस सुपरपोजिशन थ्योरम? सुपरपोजिशन थ्योरम सेज इट इज सिंपल. नाउ फॉर एग्जांपल दिस सोर्स, this circuit. In this circuit there are two sources of energy which are delivering power to the circuit. One is this battery, second is this battery. So there are two voltage sources connected in the circuit. Now one situation is if you remove this battery, there will be some situation in the circuit. If I remove E1, then only E2 is acting on the circuit. That will have some effect. What effect? There will be some current is going through the resistors. There will be some voltage drops across different elements, right? You check that. What are the currents? What are the voltages across different elements? And overall, what is the effect of one source in this circuit? Then you turn off this source and connect this source, right? See the effect in the circuit. Effect means there will be different currents through these resistors, different voltages across the different elements. Now you connect both. Superposition theorem says when both sources are active in the circuit, it is not only true for two sources, there can be 100 sources, 200 sources. We will check it for two sources. When two sources are connected in the circuit, the net effect in the circuit will be the algebraic sum or will be the sum of the effects of the individual sources when they are acting alone. यानी जो इफेक्ट एक बैटरी का होगा जब दूसरी नहीं होगी सर्किट में, और जो इफेक्ट होगा दूसरी का, वो होंगे इंडिविजुअल इफेक्ट्स जब पहली नहीं होगी. And when E1 is present, E2 is absent, there is some effect. When E2 is present, E1 is absent, there is some other effect. When both are present,
The net effect will be sum of the individual effects. This is the superposition theorem. समझ आ रही है? Yes, sir. This we have to check. This theorem is valid for AC circuits as well as DC circuits. Right? When AC circuits में instead of resistance we talk of impedances. Right? और जो voltages हम लेते हैं we take average values. For example, we take root mean square values of voltages across different elements. Right? In this circuit, it is a DC circuit. DC circuit में the opposition offered to the current is resistance. और वहाँ पे current अपनी direction change नहीं करेगी. So we are looking at this superposition theorem in a DC circuit. We will construct a circuit. ठीक है? उसमें हम दो sources connect करेंगे, दो batteries. ठीक है? तो हम measure करेंगे, एक बैटरी को पहले ऑफ करेंगे. तो एक बैटरी का इफेक्ट देखेंगे. इफेक्ट क्या देखेंगे? हम देखेंगे रेजिस्टर्स के थ्रू करंट्स कितनी जा रही है. फिर दूसरी बैटरी को प्रेजेंट करेंगे, पहली करेंगे ऑफ, यानी डिस्कनेक्ट करेंगे. ठीक है? तो देखेंगे इंपैक्ट सर्किट्स पे, करंट्स क्या है, वोल्टेजेस क्या है. देन वी कैन प्लग इन बोथ द बैटरीज एंड सी द इफेक्ट. दैट इफेक्ट मस्ट बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल इफेक्ट्स. अगर वो हुआ तो हम कहेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम हमने वेरीफाई की. तो हम सिंपल एक सर्किट बनाएंगे ऐसा. सो आई टेक वन बैटरी लाइक दिस. आई टेक वन रेजिस्टर. आई नेम इट R1. लेट इट बी 100 ohm. देन आई टेक another resistor. I name it 200 ohm. This is my R2. And I connect here one more resistor. Let it be 3, let it be 300 ohm. Then I connect one battery this way, second battery here. Let this battery be named as E1. Let it be 6 volt. And let it be E2. Let it be 2 volt. तो ये सर्किट सिंपल एक बनाएंगे डीसी सर्किट, जिसमें हम सुपरपोजिशन थ्योरम करेंगे. तो करना क्या है हमने, देखो मैं ये बैटरी करूंगा ऑफ, यानी E1 खाली रखूंगा और देखूंगा इसके थ्रू कितनी करंट जा रही है एमीटर से, इसके थ्रू कितनी करंट जा रही है R2 के थ्रू कितनी करंट, वो मैं नोट करूंगा. टेक द रीडिंग्स. देन आई मेक E2 एक्टिव, E1 ऑफ करूंगा. ठीक है? तो फिर से ये प्रोसेस रिपीट करूंगा. देन आई प्लग इन बोथ द बैटरीज एंड सी द इफेक्ट. दैट इफेक्ट शुड बी सम ऑफ द इंडिविजुअल इफेक्ट्स. समझ आ रही बात? लेकिन अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना है. ये जो मेरा वोल्टेज सोर्स है जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मैं कोई बैटरी यूज नहीं कर रहा हूँ. अगर मैं कोई बैटरी यूज करूँ इसके लिए, फॉर एग्जाम्पल आप लेक्लैंजी सेल ले, डैनियल सेल ले, ड्राई सेल ले, उसकी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, उसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है. तो सुपरपोजिशन थ्योरम जब आप यूज करते हैं, जब मैं इस E2 को ऑफ करूंगा, तब जब मैं खाली E1 एक्ट करेगा सर्किट पे, अगर कोई बैटरी में यूज कर रहा हूं, देन आई हैव टू इन द सर्किट कनेक्ट हियर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स. वो मुझे कंसीडर करनी है, वो मुझे कंसीडर करनी है जो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है. ऐसे ही होता है और एक चीज इलेक्ट्रॉनिक्स में विच इज कॉल्ड करंट सोर्स. जो करंट सोर्स होता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग. करंट सोर्स हैज इनफिनिट इंटरनल रेजिस्टेंस, वो भी पावर सप्लाई करता है. लेकिन करंट सोर्स जो आइडियल करंट सोर्स होता है, वो आप देखेंगे क्या होता है, मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा. उसकी होती है इंटरनल रेजिस्टेंस इनफिनिट. तो जब आप अगर यहाँ पे करंट सोर्स होता, वोल्टेज सोर्स नहीं मैंने लगाया होता, करंट सोर्स लगाया होता, तब जब मैं ये ऑफ करता और इसका इफेक्ट देखता, यहाँ मुझे सर्किट ओपन रखना था. यानी जब हम वोल्टेज सोर्सेज कनेक्ट करते हैं सर्किट में, जब एक वोल्टेज सोर्स हम कट करेंगे, एक का इफेक्ट देखेंगे. जो आपने कट किया उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कंसीडर करनी है, वहां पे उसके बदले उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी है. अगर वो करंट सोर्स होगा
तो वहां पे आपको उसकी इनफिनिट रेजिस्टेंस कंसीडर करनी है। इनफिनिट रेजिस्टेंस कैसे कंसीडर करते हैं, हम वो कट रखते हैं, ओपन रखते हैं सर्किट वहां से, समझ रही बात। तो हम तो यहाँ करंट सोर्स यूज नहीं करेंगे, हम कर रहे हैं वोल्टेज सोर्स यूज। दूसरी बात, जो हम वोल्टेज सोर्सेज यूज कर रहे हैं वो हमें इनबिल्ट है कि ये इतना वोल्टेज देगा। हम ये आइडियल वोल्टेज सोर्स ले रहे हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स की कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होती, तो इसलिए हम यहाँ शॉर्ट करेंगे सिंपली। शॉर्ट से मतलब ये हुआ, यानी यहाँ आपने बैटरी रिमूव की, वहां आपने कोई रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया, आपने शॉर्ट कंसीडर किया, जीरो रेजिस्टेंस, यानी इट इज द जनरल सर्किट। ये हमारा कंबाइंड सर्किट है। तो पहले मैं क्या करूंगा, ओनली E1 इज एक्टिव, यानी E1 आप कनेक्ट रखेंगे, आप ऐसे करेंगे, तो सर्किट विल रिड्यूस टू दिस, दिस इज माय R1, this is my R2, this is my R3। यहां मैं शॉर्ट कर रहा हूं, शॉर्ट करना मतलब हुआ मैंने सीधे कनेक्ट की वायर, बैटरी कंसीडर नहीं की, उसका मतलब हुआ मैंने इसको माना आइडियल वोल्टेज सोर्स, मैंने इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इग्नोर की, वही हम कर रहे हैं, समझ रही बात, क्योंकि हमारा सोर्स वैसा ही है। तो ये है E1, ये हमने 6 वोल्ट लिया है, दिस इज 6 वोल्ट, एंड वी नेम दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को हम नाम देंगे। इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा A, दिस पॉइंट इज माय B, दिस इज माय C, एंड दिस इज माय D, ठीक है। तो ये हो गया E1 एक्टिव। तो जब आप E1 एक्टिव रखेंगे, ये है मेरा पॉइंट A, दिस इज माय पॉइंट B, this is my point C, and this is my point D. So R1 is our 100 ohm, R2 is our 200 ohm, and R3 is 300 ohm. तो ये सर्किट जब आपने कनेक्ट किया, हम क्या क्या चीज नोट करेंगे इस सर्किट में, हम देखेंगे I1 प्राइम, I2 प्राइम, I3 प्राइम, and V1 prime, V2 prime, and V3 prime. Where I1 prime is what? Current through R1. I2 prime is current through R2. Current I3 prime is current through R3. And these are voltages across these resistors. समझ रही बात? अब जब आप करंट की बात करेंगे, इट इज नॉट द जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, आपको ये भी देखना है कहां से कहां, तभी मैंने पॉइंट्स को नाम दिया। फॉर एग्जांपल करंट कैन गो थ्रू R1, इट कैन गो फ्रॉम B to A और A to B, तो आपको वो नोट करना है A to B है कि B to A है। ऐसे ही फॉर R2 एंड R3 वोल्टेज का भी, जब हम किसी चीज के अक्रॉस में दो वोल्टेज है, ये हमने डिसाइड करना है विच पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव टर्मिनल कौन है, नेगेटिव टर्मिनल कौन है, वो भी हमने वोल्टेज में देखना है, तभी हमें सम में वो कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल अगर एक बैटरी फॉर एग्जांपल कनेक्ट करने से R1 के थ्रू करंट गई A to B 1 एम्पियर, जब हमने दूसरी बैटरी जोड़ी तब गई B to A 2 एम्पियर, नेट करंट कहां से गई B to A 1 एम्पियर, तब उनका डिफरेंस होगा सब में। अगर दोनों सिचुएशन में सेम डायरेक्शन में होगी, तब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से जो नेट करंट होगी वो उसी डायरेक्शन में होगी, उनका सम। अगर इंडिविजुअली वो अपोजिट डायरेक्शन में थी, तब आपको डिफरेंस करनी है नेट इफेक्ट ढूंढने के लिए, वही वोल्टेज इसको होगा। समझ आ रही है बात? अगर एक बैटरी की कनेक्ट करने से वोल्टेज A और B के अक्रॉस की 5 वोल्ट, मगर A था हायर पोटेंशियल पे, समझ आ रही बात? दूसरी बैटरी की वजह से है 3 वोल्ट, A था हायर पोटेंशियल पे, तब नेट होगी 8 वोल्ट, A होगा हायर पोटेंशियल। लेकिन अगर अपोजिट सेंस में होगा, यानी पहली सिचुएशन में A था हायर पोटेंशियल में, दूसरी सिचुएशन में B था हायर पोटेंशियल पे, तब डिफरेंस करनी है नेट इफेक्ट में वोल्टेज को, ये ध्यान रखना है। तो किया आपने ये सिचुएशन, देन ओनली E2 इज एक्टिव, ये सिचुएशन आपको सर्किट में बनानी है, यानी आपको अब ये है R1, ये है आपका पॉइंट A, ये है आपका पॉइंट B, दिस इज योर R2,
here you have to connect E2. This is your R3. This is E2, which is 2 volt. Then on this side you short it. जब E2 एक्टिव होगा आप इसको शॉर्ट कर रहे हो, बाकी वैसा ही वो कनेक्ट करके रखते हो. समझा रही बात? बिकॉज हम ये वोल्टेज मान रहे हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स, ये हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स. तो वैल्यूज अपने आप में है. ये है आपका 100 ओम, ये है 200 ओम. आप कुछ और ले सकते हैं वैल्यूज, उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं. मैंने आप ऐसे ही ये वैल्यू दी. तो देन यू चेक again the currents to these resistors and the voltage across them. This is point A, point B, point C, and this is point D. तो अब हमको बोलेंगे अब डबल प्राइम. I1 डबल प्राइम, I2 डबल प्राइम, I3 डबल प्राइम. Where I1 double prime is the current through R1, then E2 is active. Only E2 is active. ठीक है? Same goes for 2 prime and 3 prime. And you check the voltages. V1 double prime, V2 double prime, V3 double prime. फिर कौन सी सिचुएशन आएगी? Then you get this situation. Both active. ठीक है? Both active. तो you check again currents. उनको आप कहेंगे I1, I2, I3 and voltage V1, V2, V3. सुपरपोजिशन थ्योरम कह रहा है आपको ये जो करंट्स होंगी when both are active, ये उन करंट्स का अलजेब्रिक सम होगा. अलजेब्रिक सम यानी इंडिविजुअल इफेक्ट्स का सम जो होगा नेट इफेक्ट होगा जब दोनों सोर्सेज प्रेजेंट होंगे, और वोल्टेज के लिए भी वही होगा. तो आप देखेंगे इसमें थोड़ा एरर भी आ सकता है, लेकिन वो क्लोज होगा, क्योंकि जो हम आइडियलाइजेशन कर रहे हैं उससे थोड़ा एरर आ सकता है, लेकिन वो उतना ज्यादा नहीं होगा. तो जब ये फॉलो करेगा कि these currents and voltages are the sum of those currents and voltages, algebraic sum, तो that will prove that superposition theorem is right. वो वेरीफाई हो जाएगा. तो सबसे पहले हम वो सर्किट बनाएंगे, वो वाला मैं E1 is active और वो करंट्स करेंगे नोट. ठीक है? आप यहां से आ जाओ करंट्स. तो हम यूज कर रहे हैं एक बैटरी. यहाँ पे मुझे 3 वोल्टेज सोर्सेस हैं. 1 is 2 वोल्ट, ये उसके टर्मिनल्स हैं. सेकेंड इज 2 वोल्ट, इसके भी टर्मिनल्स हैं. 3 है 2 वोल्ट एंड आई हैव 6 वोल्ट. हम यूज कर रहे हैं 6 वोल्ट एंड 2 वोल्ट. तो 6 वोल्ट जो है उसको हमने क्या नाम दिया है? 6 वोल्ट इज अवर E1. ठीक है? मैं मार्कर से इसको लेबल करूंगा. दिस 0 to 6 वोल्ट इज माई E1. 2 वोल्ट जो है हमारी वो कितनी है? 2 वोल्ट है मेरी E2. इसका नाम लिख के ये मेरी E2 है. तो दिस इज E1, दिस इज E2. पहले मैं चेक करूंगा ये कितनी वोल्टेज दे रहे हैं. आप वायरस लाए वहां से, वो वायरस लाओ. मैं देखूंगा ये जो E1 है ये 6 वोल्ट देती है कि नहीं. तो मैं ये वोल्ट मीटर के साथ इसको कनेक्ट करूंगा. ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ. जब ये फुल पे होगा ये तेरा 6.11, तो मैं इसको एडजस्ट करूंगा टू 6.
तो ये मैंने रखी 6 वोल्ट। अब इसका नॉब मुझे चेंज नहीं करना। मूव नहीं करना है बिकॉज इट इज नाउ 6 वोल्ट। दूसरी बैटरी जो मैं ये यूज कर रहा हूँ E2, ये है उसके टर्मिनल्स, वो 2 वोल्ट है। ये मैं 2 पे करूंगा सेट। टू से ज्यादा ही है, हम उसको 2 रखेंगे। तो ये 2 वोल्ट है यहाँ पे। ये रखा हमने 2 वोल्ट, ठीक है। अब इसका नॉब भी हम चेंज नहीं करेंगे। अब हमें जरूरत है रेजिस्टर्स R1, R2, R3। R1 कितना है? ये मेरे रेजिस्टर्स हैं। R1 100 है, तो ये हम रखेंगे फर्स्ट स्टेप पे। तो मैंने वापस लाया। और क्या है दूसरा? 200। फिर पहले मैं ये वापस लाता हूँ इसको। देखो मैं ये 3 कर रहा हूँ यूज। ये जो लिखा है Z1, Z2, Z3, इसका एक स्टेप है 100 ओम, इसका भी 100 ओम, इसका भी 100 ओम। मुझे क्या चाहिए? 100। सर्किट दिखाओ मुझे जो आपने बनाया। R1 कितना था? 100। तो ये मेरा R1 है, यानी ये एक स्टेप मुझे करना है मूव, जिसमें R1, इसको मैं लिखूंगा ये मेरा R1 है। R2 है 200, तो इसके मैं 2 स्टेप्स लूंगा, 1 और 2। तो R2 है मेरा 200, इसमें R2। R3 है 600, 300। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप। तो ये है मेरा R3, ठीक है। अब हम करेंगे सर्किट कनेक्ट। ये हमें वोल्टमीटर फिलहाल जरूरत नहीं है। अब हम करेंगे व्हेन E1 इज एक्टिव। वो सर्किट दिखाओ व्हेन E1 इज एक्टिव। खाली E1 जब एक्टिव है, वो है ये। तो ये E1 है। E1 का पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा R1 के एक टर्मिनल के साथ, वो हो गया ये। R1 का जो दूसरा टर्मिनल है वो ये है, वो जाएगा R2 की टर्मिनल के साथ। R2 के एक टर्मिनल के साथ, और जाएगा वो R3 के और एक टर्मिनल के साथ। यहाँ ये वायर लगेगी, 1 मिनट, जिसमें डबल होल होगा। तो फिर से करेंगे। E1 का पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा R1 के एक टर्मिनल के साथ। R1 का जो दूसरा टर्मिनल है, एक तो जाएगा वो C1 एक तो जाएगा वह R2 के एक टर्मिनल के साथ, ऐसे। और जाएगा वो R3 के एक के। टर्मिनल के साथ। तो यहाँ से और एक टर्मिनल उठाना है। R3 का एक टर्मिनल, ठीक है। अब R3 का जो वायरस लाओ, R3 का दूसरा टर्मिनल जो है वो ये है, इसको भी चाहिए होल। R3 का दूसरा टर्मिनल जाएगा कहाँ? बैटरी E1 के नेगेटिव के साथ, और R3 का जो और एक टर्मिनल उठेगा वो R2 के दूसरे टर्मिनल के साथ जाएगा। ऐसे। यानी ये बन गया ना यहाँ जंक्शन। यहाँ 2-2 वायर्स उठी ना, समझाई बात? ऐसे, ठीक है। ऐसे। अब हमें चेक करनी है वोल्टेजेस अक्रॉस R1, अक्रॉस R2 एंड, या पहले करेंगे करंट्स चेक। पहले सर्किट चेक करेंगे, फिर करेंगे हम फिर से ट्राई। E1 का पॉजिटिव गया R1 के एक टर्मिनल के साथ। R1 का दूसरा टर्मिनल जो है वहाँ से 2 कनेक्शंस के उठे। एक गया R2 के एक टर्मिनल के साथ, दूसरा गया R3 के एक टर्मिनल के साथ। R3 का दूसरा टर्मिनल गया
एक R2 के इस टर्मिनल के साथ और E1 E1 नेगेटिव। नेगेटिव के साथ। ठीक है, देखो अब हमने पहले ढूंढनी है करंट थ्रू R1, या पहले करंट करेंगे। देखो वो कैसे जाएगी, यहाँ से करंट आएगी, ऐसे जा रही है R1 में, फिर यहाँ से, फिर अंदर से R1 के थ्रू यहाँ से निकल रही है ना, R1 के दो टर्मिनल्स। तो मुझे एक वायर लानी है, आप वायर दो। देखो ये यहाँ से मुझे ये जो कनेक्ट करना है, ये मुझे मीटर के थ्रू कनेक्ट करना है, ये समझो। ये मेरा एमीटर है, यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है। समझाई बात? देखो ये जो करंट आई, ये जाएगी मीटर के थ्रू, फिर करेगी एंटर, मीटर से यहाँ से निकलेगी, जाएगी R1 के थ्रू। ये करंट दिखाएगा मुझे कौन सी, जो करंट जा रही है R1 के थ्रू। समझा रही बात? यहाँ से गया मीटर के थ्रू, फिर यहाँ से निकली करंट गई R1 के थ्रू। तो ये R1 की करंट है। ये कितनी कि ये है 0 ये 100 मिली एम्पियर है। ये दिखा रहा है मुझे 15.8 मिली एम्पियर। लिखिए आप, जो I1 प्राइम है उसको लिखो आप 15.8 मिली एम्पियर। दिस इज 15.8 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये था ये करंट 15.8 मिली एम्पियर। अब मैं ये वायर वापस निकाल रहा हूँ मीटर की, ये वापस मैं जोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे ये मीटर ज़रूरत है। ठीक है, अब I2 देखना है। I2 कहाँ है? देखो ये है सेकंड रजिस्टर, इसको ध्यान रखना है आपको। ये है आपका R2 का एक टर्मिनल, ये है R2 का दूसरा टर्मिनल। तो ये R2 में जो करंट जाएगी, ये मीटर से फीड करनी है, ऐसे ध्यान रखना है क्या कर रहे हैं। समझाई बात? ये R2 से जो मैंने कनेक्शन निकाला वो कहाँ दिया? एमीटर में इसमें, फिर उसका नेगेटिव वापस दिया। से यह है 9 मिली एम्पियर, 9 मिली एम्पियर। दिस इज 9 मिली एम्पियर। देन ये निकालना है, आप इसको ध्यान रखना है। फिर सर्किट को ध्यान, गलत गया सर्किट तो ये गलत आएगा रिजल्ट। ये ऐसे था ना सर्किट, जरा फिर से सर्किट चेक करो। फिर वापस ऐसे था, यस सर, ठीक है। हमने E1 का पॉजिटिव यहाँ गया, सर्किट दिखाओ मुझे। R1 का दूसरा एंड गया R2 के एक एंड को, और वहाँ से और एक एंड गया R3 को। अब ठीक है, अब I3 ढूंढना है R3 के थ्रू। ये समझो, ये है R3 का एक टर्मिनल, ये है R3 का दूसरा टर्मिनल। ये जो R3 को करंट एंटर कर रही है वो मीटर के थ्रू करानी है। It is 6.8 मिली एम्पियर। 6.8 मिली एम्पियर। ठीक है, then I cut it again। यहाँ सर्किट का ध्यान रखो आप, मैं मत गलत करूँगा। यहाँ से निकाला मैंने, ऐसे था ये। करंट चेक करने में मसला ये होता है, बिकॉज करंट को जाना होता है ना, ये करंट मीटर लगाना होता है ना सीरीज में। तो करंट मीटर लगाने के लिए यू हैव टू कट द वायर एंड इंसर्ट द मीटर इन द लूप, जैसे मैं कर रहा हूँ, ये ब्रेक कर रहा हूँ फिर उसमें डाल रहा हूँ। वोल्टेज को वो मसला नहीं है सर्किट काटना है, जिसके अक्रॉस वोल्टेज ढूंढनी है उसके अक्रॉस, बिकॉज दैट इज इन पैरेलल। पहले सर्किट हमने ठीक से जोड़ा, जरा इसको नजर दो।
R1 का एक टर्मिनल जा रहा है R2 को, R2 का दूसरा टर्मिनल जा रहा है एक मिनट, पॉजिटिव टू दिस। R1 का दूसरा टर्मिनल है R2 को, और वहाँ से जा रहा है और एक टर्मिनल R3 को, 2 जा रहा है फिर 3 और बैटरी को। ये ठीक है। अब हमने देखना है V1, V2, V3, वो रिलेटिवली आसान है, सिर्फ होना चाहिए यहाँ होल। देखो ये R1 के 2 टर्मिनल्स हैं, इसके अक्रॉस जोड़ना है वोल्ट मीटर, सिंपल है ये। यानी एक वायर उठानी है यहाँ से, मुझे चाहिए 2 होल वाली वायर जिसमें होल होगा इसमें। देखो पहले मैं यहाँ ये रिप्लेस करता हूँ। अब यहाँ से मैं कैसे कनेक्शन उठाऊँ, उसके लिए मुझे चाहिए ये ना R1 के टर्मिनल्स, इसमें लेकिन और एक चीज़ भी ध्यान रखनी है, ये वोल्ट मीटर है, नेगेटिव से कनेक्शन कैसे लेंगे, यहाँ तो जगह ही नहीं है। सर यहाँ से लिए, दिस हैज डबल होल्स। ज़रा आप 2 होल वाली वायर और एक ये लो, इसको शॉर्ट शायद, उसको वो वायर जोड़नी है फिर। What is it? 3.23 3.2 वोल्ट, 3.23 वोल्ट लिखिए आप। R1 के इट इज़ V1 प्राइम, 3.23 समझा रही बात? ऐसे। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, ये मैं निकाल रहा हूँ। इसका 100 था ना, ऐसे R1 कितना था? 100। तो ये वायर निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखनी है वोल्टेज अक्रॉस R2। R2 इज, यहाँ पे हम और एक पहले ये पॉइंट्स करेंगे स्पेसिफाई, ABCD कौन है सर्किट में, उसके बाद हम आगे जाएंगे कि उसके प्रॉब्लम हो सकती है। देखो ये E1 का पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ से जा रहा है वो है पॉइंट A, ये है पॉइंट A। फिर जो R1 का दूसरा एंड है पॉइंट B, ये है पॉइंट B। पॉइंट C कौन है? पॉइंट C है R2 के R1 के दूसरे एंड से जो उठ रहा है कनेक्शन R2 के सेकंड टर्मिनल, R2 के सेकंड टर्मिनल के साथ, वो हो गया ये है C, ये C। D कौन है? D है जहाँ से R3 का दूसरा टर्मिनल और बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट हो रहा है, तो ये है D। समझ रही बात? अब जो हमने पॉजिटिव कहाँ से लिया था? A से लिया था ना पॉजिटिव, जो वोल्टेज आई, यानी A था हायर पोटेंशियल पे, वोल्ट मीटर का कनेक्ट किया था हमने पॉजिटिव A के साथ। इसका 100 एक क्लिक है, इसका था R2 था 200, ये मत मूव हुआ,
नो सर। ये नहीं मूव हुआ, ये 200 था। यस। मैं चेक करता हूँ इसको। अब हमने वोल्टेज देखनी है R2 से। ये है R2 के दो टर्मिनल्स, वन इज दिस, सेकंड इज दिस। अब यहाँ से हमने वायर लेने हैं, इसका है डबल। ये है R2 का एक टर्मिनल, चलो यहाँ है होल। ये है, देखो वोल्टेज जो R2 के अक्रॉस वोल्टेज है 2.77 वोल्ट। आप इसमें था A पॉजिटिव, इसमें था A पॉजिटिव, पहली वोल्टेज में था A पॉजिटिव, मतलब A पॉइंट। इसमें है B पॉजिटिव, समझा रही बात? B था पॉजिटिव, पॉइंट B था पॉजिटिव, यानी वो हमने किया था वोल्टमीटर के पॉजिटिव के साथ, राइट? पॉजिटिव। तो देन पॉजिटिव। नेक्स्ट। तो ये खोला हमने वोल्टमीटर, ये हमने R2 का सर्किट बराबर का, ये हमने वोल्टमीटर खोला। अब R3, ये है R3 के दो टर्मिनल्स, समझा रही बात? यस सर। तो ये पॉजिटिव जोड़ा यहाँ, इसमें है होल, ये जोड़ा यहाँ, ये भी है 2.77। नेगेटिव देखो, नेगेटिव के साथ जुड़ा है पॉइंट डी, उसका मतलब आप लिखो नेगेटिव डी, डी था नेगेटिव, उसका मतलब हो गया दूसरा एंड जो है वो पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। समझ आ रही है बात? तो नेक्स्ट क्या होगा, ये हमने मैंने E1 के लिए दिखाया, ठीक है? ऐसे ही रिपीट करना है प्रोसीजर E2 के साथ, फिर ऐसे ही करना है रिपीट जब दोनों बैटरीज होंगी, फिर वो चेक करना है। यहाँ पे हम वीडियो रोकते हैं, ठीक है? यस सर। बाकी हम करते हैं कंप्लीट फिर।